combination of thin lenses in contact. This is the name of the article is combination of thin lenses in contact. Now thin lenses, if they are in contact with one another, then what will be the impact on the focal length? So this is article number 9.5.4. This is 9.5.4 of NCERT. Right. So before going through the text, I would like to share the image with you. So this image is the image. I would like to share it with you. Okay. So now see here. Consider two lenses. This is the lens A and this is the lens B. Right. So this f1 is the focal length of this lens. This is f1 is the focal length of this lens, and f2 is the focal length of the second lens. Right. So now here let the object is placed at point O. Initially let the object is placed at point O. So what is going to happen? You have to recall a little bit about the lens maker formula. The ray of light will go from this object and it will strike at the interface of rarer and denser medium. So initially you have to think, for example, आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ कोई B लेंस यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये पतला सा लेंस है और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आगे रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी और फिर दूसरे फेस पर जाके ये वापस फिर रिफ्रैक्ट होगी और ये स्ट्राइक करेगी. इट विल मीट एट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट I1 and this point will be the position of the image. This point will be the position of the image due to the first lens. So I will mark this as V1. Yeah, it is marked over here. This is marked over here. This is marked as V1. Initially, because of the lens 1, this is the position of the object and this is the position of the image. So इसके लिए हम यदि हम लेंस का फार्मूला इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए. -1 by u plus 1 by V1. V की जगह अब V1 लेना है क्योंकि इमेज जो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज जो है वो V1 पोजीशन पर है and this is the focal length of the first lens. Right. So mark it as important as an equation number 1. All right. Now we will shift our discussion now to the lens 2, lens B. So if you place now lens B over here, इसके साथ आप सटाकर यदि इसको रखते हैं तो क्या होने वाला है? अब ये वाला जो इमेज है ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो रे ऑफ लाइट है विद द प्रेजेंस ऑफ द लेंस B, it will refract more and it will intersect with the principal axis at point I. So see here, it will refract more because of the presence of the lens B and it will intersect with this principal axis at point I. So this is the position of the final image. This is the position of the final image of the object. Which one object? This is now the object located at I1 for the second image. So now the corresponding mathematics for this part of the text is, अब देखिए ये फार्मूला क्या रहेगा, -1 by u, ये लेंस फार्मूला है. अब u क्या है? V1. So this is the position of the object now. This is object now. This is the object. This is object for lens B. This is the object for lens B. So you can write it as 1 upon B1 minus 1 upon u plus final images plus 1 by V is equal to 1 by focal length. देखिए फार्मूला हमारे पास हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसमें उलझना नहीं है. हमारा बेसिक लेंस का फार्मूला क्या होता है?
माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इक्वेशन नंबर 1 पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यू ही रहेगा, और जो v का वैल्यू है ये v1 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा फॉर फर्स्ट लेंस के लिए, और फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f1 है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में यहाँ f की जगह f1 लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को आप लेंस 2 के लिए लगाइए। जो लेंस 2 है उसके लिए u का वैल्यू कितना है, उसके लिए u ये v1 है, क्योंकि ये जो फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है लोकेटेड एट O, इसका जो फाइनल इमेज है ये B के लिए अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसलिए U की जगह आपके पास यहाँ आ जाएगा V1, और जो V जो फाइनल इमेज की जो लोकेशन है अब V पर ही है, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो सेकेंड लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो f2 है। अब शायद आपको इसको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, और हम अब चलते हैं आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करने के बाद। सी, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी, तो जोड़िए। ये आएगा -1/u प्लस 1/v1 और -1/v1, साइन चेंज नहीं हो क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं, सो 1/v, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। सो 1/v1 से 1/v कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2. So see, this is the form of lens formula once again. जोड़ने के बाद भी एक लेंस फार्मूला की शेप में आ गया है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो -1/u और 1/v जो है ये एक नई फोकल लेंथ है, और एक कौन सी फोकल लेंथ है, ये क्रिएट कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो यदि आपके मैथमेटिक्स में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये तब ऐड हुई जब आपने इन दोनों लेंसेज को इकट्ठा रखा है। अब इसका एक सिस्टम बना दिया है, दिस इज द सिस्टम ऑफ दीज टू थिन लेंसेज। हम यहाँ मान लेते हैं लेट f be the focal length of system of two thin lenses। यदि हम दो थिन लेंसेज को हमने इकट्ठा किया तो उससे जो नई फोकल लेंथ बनी उसको यदि हम f का नाम दे दें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप नई फोकल लेंथ मान लीजिए, दिस पार्ट इज द न्यू फोकल लेंथ, ओके। So this is 1/f minus 1/u plus 1/v is the new focal length of the combination of these two lenses. So this is equal to 1/f1 plus 1/f2, right? So this is the new formula of the combination of the lenses. पर ऐसा भी हो सकता है, यदि हम प्रैक्टिकली देखें, यदि हमारे पास दो लेंसेज के से ज़्यादा लेंसेज भी हो सकते हैं, तो यदि ऐसा हो जाए तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। हमारा जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इफ़ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ लेंसेज देन द इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 plus so and so on. It's a large number of lenses are arranged over here, and you will keep on adding the focal length of the every lens. So this is we are going to add the focal length of the every lens is added in the inverse form as it is shown over here, and we know that the 1/focal length is the power. So you can discuss this equation in terms of power. So the effective power of this combination is equal to power of the first lens, power of the second lens, power of the third lens, so and so on. जितने लेंस आपने अरेंज करके रखे हैं उन सब की पावर जो है वो इस तरीके से ऐड होती चली जाएगी। अब इसमें जो बड़ी मज़ेदार समझने वाली बात है वो ये, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी अटेम्प्ट करेंगे तो आप किस बात का ध्यान रखना है,
कि आप जानते हैं कि जो लेंस फार्मूला वटेवर कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका फाइनली जो फार्मूला होता है वो एक ही जैसा रहता है। इसका मतलब ये जो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, ये कॉनकेव भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स इकट्ठे भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो उस स्टेज पर आपने देखना है कि यदि ये सारे कॉनकेव होते हैं तो सभी की जो पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी, यदि ये नेगेटिव होंगे तो इफेक्टिव पावर नेगेटिव आएगी, और यदि कुछ कॉनकेव होंगे कुछ कॉन्वेक्स होंगे तो कभी जो पावर है पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्टिव पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज का एक आंसर बनेगा। अब ये जो कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज है, इट हेल्प्स अस टू ऑब्टेन द डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम इन लेंसेज को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हमारी जो इफेक्टिव पावर है वो या तो इंक्रीज़ करना है या उसको डिक्रीज़ करना है। तो इस तरीके से हम जो लेंसेज है उसको कंबाइन करते हैं, और इसमें इसको हम मैग्निफिकेशन के टर्म में यदि हम इसको पढ़ना चाहें तो हम मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कम्बिनेशन इज़ equal to magnification of the first lens क्रॉस मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकेंड लेंस क्रॉस मैग्निफिकेशन ऑफ द थर्ड लेंस, सो एंड सो ऑन। तो जितने भी लेंसेज को आप अरेंज करते हैं तो उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। सो द बेस्ट यूज ऑफ दिस टेक्स्ट इज दैट सच ए सिस्टम ऑफ कम्बिनेशन, जब हम ऐसा कम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं इन डिज़ाइनिंग द लेंसेज फॉर कैमराज। यदि कैमरा के डिज़ाइनिंग में यूजर्स दे आर, ये जो टेक्स्ट है आपको क्यों पढ़ाया गया, दे आर यूज्ड इन सच combinations are used in, they are used in cameras, used in cameras, microscopes। ये हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, used in telescopes and other optical instruments and other optical instruments. Okay, so we will now try to solve one more problem related with this to understand this text fully well. Video we are going to solve the example number 9.9. It's a very interesting and informative example. I would like to share the question with you first, and then this is the question we are going to discuss to solve. See, the question is very informative question. This is example 9.9. ये बहुत informative example आपको लगेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस कम्बिनेशन। अब इसमें क्या किया है कि हमने जैसे अभी पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को पढ़ा है, अभी हमारे जो लेंस है, अब 3 लेंस है आपके पास। तो फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है कॉनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ इसकी भी पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। And now see here, it's very interesting new part that these two lenses are separated by a distance of 5 centimeter, and these two lenses are separated by a distance of 10 centimeter. So हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इस कम्बिनेशन से जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है u, that is 30 centimeter from the first lens A. This is lens A, this is B, and this lens is C. So from the lens A, this is the position of the object, and you were asked to find the position of the image because of the combination of these lenses. So हम शुरू करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम लेंस के बारे में जो जानते हैं सबसे पहले हम उसकी आपसे चर्चा करना चाहते हैं और उसका हम इस्तेमाल भी करेंगे। सो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यदि इसको आप घुमा के लिखें तो पॉजिटिव पार्ट को आप पहले लिख लीजिए, 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। सो ये एक छोटा सा फार्मूला है, चाहे आप इसको पहले फार्मूले को इस्तेमाल कर लें चाहे आप दूसरे फार्मूले को इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करने से हम इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे और आप इसको समझेंगे भी, इसमें कॉन्फिडेंट होंगे और आप देखेंगे कि बहुत इंजॉयबल आपको लगेगा।
So solution of the problem is this, the solution of the problem is C. सबसे पहले हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस, the image formed by first लेंस A, राइट। तो इसमें हम ये मानते हैं कि जब हम पहले लेंस के इमेज की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि जो दूसरे लेंस हैं वो बिल्कुल एब्सेंट है, वो यहाँ है नहीं। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम इस फार्मूले में V1 मार्क कर देंगे, U1 मार्क कर देंगे और F1 मार्क कर देंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा, 1/B1 and -1/U1 and it is equal to 1/F1, right? So here U1 is left of the lens, so it is taken as negative. So this U1 is equal to -30 centimeter, and the focal length is F1 is equal to 10 centimeter, and this is B1 has to be calculated. So B1 यहाँ आपके लिए अननोन रहेगा कि पहला जो लेंस है, यदि मान लो वो अकेला होता तो इमेज कहाँ बनता, आपको इस तरीके से सोच के चलना है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1/V1 -1/U1 की जगह आप लिख सकते हैं -30 and it is equal to 1/10 centimeter, right? So this is 1/V1 and is equal to 1/10. It is plus, ये माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस बनेगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, -1/30. This is -1/30. So this is equal to 1/B1 is equal to this LCM is 30. So this is 3 minus 1. This is 2/30. So this is 1/15. So this means B1 is equal to 15 centimeter. So B1 is equal to plus 15 सेंटीमीटर का एक मीनिंग है कि इससे जो इमेज बनेगा, जो फर्स्ट लेंस इमेज बनाएगा वो राइट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगा, क्योंकि वो लेफ़्ट टू आप लेफ़्ट टू राइट यदि आप जाते हैं तभी जो इमेज का साइन है वो पॉजिटिव आता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट लेंस की इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हम यदि कल्पना करें, जैसे हमने लेंस मेकर फार्मूला में किया था या कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में किया था, कि जो अब ये इमेज होगा, ये इमेज ऑफ द फर्स्ट लेंस जो होगा वो ये अब दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो इसमें फार्मूला बिल्कुल स्ट्रिक्टली यही रहेगा। हम सेकेंड लेंस, फॉर द सेकेंड लेंस हम बात करते हैं, फॉर द इमेज फॉर सेकेंड लेंस। ओके फॉर सेकेंड लेंस, देखिए फॉर सेकेंड लेंस के लिए इक्वेशन क्या बनना चाहिए। अब इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो u है, अब जो u का पोजीशन है वो हो जाएगी V1 के बराबर 15 सेंटीमीटर। पर आप ध्यान से देखिए, इसका जो फर्स्ट लेंस का जो इमेज बनेगा वो बनेगा 15 सेंटीमीटर राइट ऑफ दिस फर्स्ट लेंस। ये 15 सेंटीमीटर इधर दूर बनेगा, पर ये जो ये इस लेंस के लिए ये क्या बन जाएगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट बनेगा, पर ये तो पहले ही 5 सेंटीमीटर इससे दूर है। सो इसके लिए क्या होगा, हम ये कह देंगे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस सर्व्स एज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड लेंस। सो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस कलर से आपको दिखेगा नहीं, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रह जाएगा, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, अब ये 15 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 15 यहाँ बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो आपका जो कॉन्केव लेंस है, जो सेकेंड लेंस है, वो 5 सेंटीमीटर पहले ही दूर है, तो ये सिर्फ रह जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। So this is the position of the object now.
So you can use now the formula once again. यहाँ आप इस फार्मूले को फिर आप लिख लीजिए. सेकेंड लेंस के लिए ये फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको हम लिखते हैं 1/V2 और माइनस. अब ये राइट साइड में है, सो राइट साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा 1/10 एंड this is equal to focal length is minus 1/-10, right? So 1/V2 is equal to minus 1/10 plus 1/10, so this is equal to 0. So here B2 is equal to infinite. So जो B2 है, जो सेकेंड इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा. सो दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस. दिस इज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, बिकॉज जो कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है. सो दिस वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. सो दिस विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. दिस वर्चुअल इमेज will be formed at this image will be formed at infinity. ये infinity के ऊपर बनेगा. ओके, so from left to it is to the left of the second lens. ये second lens के left की ओर बनेगा. So this is known to you. आपको पता है कि यदि ray of light इधर से जाएगी तो इसमें जो virtual image बनेगा the same side of the lens बनेगा. This is what I have explained it earlier also. अब हम चलते हैं कि यदि थर्ड लेंस की यदि प्रेजेंस आ जाती है, दिस एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस. दिस इमेज जो इन्फिनिटी पर बनेगा एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस. ये थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. सो हमारे पास हो जाएगा फार्मूला 1/V3. V3 is the final position of the image. This is minus 1/U3 and this is equal to focal length of the third lens, right? So here this part U3 is infinite, so 1/infinity is 0. So you can write 1/V3 is equal to 1/F3. So just this focal length is plus 30, so this means V3 is plus 30 centimeter. This is very informative. This is plus 30 means this is now final image of the object is to the right of this combination, right of the third lens, right? The final image is formed 30 centimeters to the right of the third lens because the positive sign shows this. So this is all enough about this numerical problem, and with this I will close this the first part of this ray optics, and then we'll shift our discussion from the next video from the refraction through a prism. So if you do have any problem, then keep on writing in the comment box. If you have any question, keep on writing in the comment box. You're free to write, but you want to write for your welfare. Thank you.